Hello everyone. Today we are going to learn a beautiful lesson. The name of the lesson is The Necklace. In this lesson, there is a lady whose name is Matilda, and she was not satisfied with the things which she had, and she wanted more to fulfill her needs, and that's why she borrowed things from others, and because of that she faced problems in her life, and that thing changed her life. So that we are going to see in this lesson. In our life also, we are doing the same things. Sometimes we do not satisfy with the things which we have, and we want others things. We want the things which others have, and because of that sometimes it creates problem in our life. So we should avoid that things. So let's start the lesson, the necklace, and learn what to do in our life if we find this situation. Let's start. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Let's see. Okay, before starting the lesson, there are two questions which we have to find out from the lesson. The first is, what kind of a person is Madame Loisel? Why is she always unhappy? The second is, what kind of a person is her husband? Let's see. We have to find out these two questions answer in the lesson. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. Okay, so here we are talking about the lady named Matilda. She was born in a family of clerks. She was very pretty. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. Okay, she was very beautiful, and she was from the poor family, so her parents were not able to give dowry, and that's why she was married to a clerk who was in the Board of Education office. So she was simple, but she was unhappy. After marriage, she was simple, but she was unhappy with her life. She suffered incessantly. Incessantly means continuously, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. Okay, she was not satisfied with the apartment, means the house also. She did not like that house even. All these things tortured and angered her, and because of this poverty, she became angry, or she remained angry. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." Now, always, every evening, when she was sitting for the dinner opposite her husband, at that time she was always thinking about the delighted food. Tureen means a dish used for serving soup, and always her husband said, "Oh, good pot pie," and the lady was knowing that that was nothing better than that. It means that उनके घर में इससे अच्छा और कुछ बन नहीं सकता था. She would think of elegant dinners. Elegant dinners means tasty, okay, tasty or fine, delicious food, of shining silver. She thought of the
exquisite food served in marvelous dishes. Exquisite means pleasing और tasty, जो हमें मज़ा आए, अच्छा लगे वैसा फूड. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. ठीक है, उसको क्या चीज़ें पसंद थी? उसको ज्वेल्स पसंद थे, दागिना, ठीक है, घरेना, वो सब चीज़ें पसंद थी, पर वो सब उसके पास था नहीं. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. ठीक है, उसकी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसकी स्कूलमेट, और वो उसे मिलना पसंद नहीं करती थी. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो जब उसको मिलने के बाद रिटर्न आती थी तो उसे बहुत ही तकलीफ होती थी. She wept for whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Elated means delighted, happily. Okay, one evening क्या हुआ कि उसका हस्बैंड जो है वो बहुत ही खुशी में अपने हाथ में एक एनवलप लेकर घर पे आता है. Here he said, here is something for you. Okay, वो उसके लिए कुछ लाया है. क्या लाया है? Let's see that. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Inscribed means written. कुछ words लिखे थे. The Minister of Public Instruction and Madam George Rapone asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel's company. Monday evening, January 18, at the minister's residence. Means this is the invitation card. ठीक है, कोई पार्टी अरेंज की है और उसमें मैडम लॉइजल और मिस्टर लॉइजल को बुलाया है. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Spitefully means in anger. ठीक है, वो क्या करती है? उसका हस्बैंड को लगता है कि वो बहुत ही खुश हो जाएगी ये देखकर, पर उसका ऑपोजिट रिएक्शन वो करती है. वो उस इनविटेशन कार्ड को गुस्से में वहाँ पर टेबल पर फेंक देती है और बड़बड़ाती है, इससे मैं क्या करूँ? But my dear, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wish one, and it is very select. Not many are given to employees. ठीक है, उसका हस्बैंड कहता है तुझे तो ये सब कुछ बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे लगा तुम्हें ये खुश करेगा, और बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, कुछ कुछ एम्प्लॉइज़ को ही ये मौका मिला है. You will see the whole official world there. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" ठीक है, वो बोलती है, पर वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास पहनने के लिए क्या है? मैं वहाँ पे जाके क्या पहनूं? He had not thought of that. He stammered. Stammered means हकलाता हुआ बोलता है. Why? The dress you wear when we go to the theater. ठीक है, हम जब थिएटर ड्रामा देखने के लिए गए तब तुमने जो ड्रेस पहना था वो तुम पहन सकते हो. It seems very pretty to me. ठीक है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. He was silent, stupefied, in dismay. Stupefied means without any thought, and dismay means disappointment. At the sight of his wife weeping. ठीक है, उसकी वाइफ को रोता हुआ देखकर वो चुप हो जाता है. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. ठीक है, और vexation means anger, irritation. वो रोती हुई है. जब उसका हस्बैंड पूछता है तो बोलती है कुछ नहीं. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Consequently means as a result. मेरे पास ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस अफेयर मीन्स पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ. गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई. ठीक है, वो बोलता है, वो क्या बोलती है कि इससे अच्छा ये कार्ड तुम वैसे किसी पर्सन को दे देना जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा इस जगह के लिए फिट होती हो. ही वॉज ग्रीव्ड. ग्रीव्ड मीन्स सैड, बट आंसर्ड, लेट अस सी मटिल्डा, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions,
समथिंग वेरी सिंपल। ठीक है, अब उसका हस्बैंड क्या करता है, उससे पूछता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस लेने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk। ठीक है, अब वो क्या करती है, वो एक लेडी है, इंटेलिजेंट है, वो सोचती है कुछ देर तक, क्योंकि वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए मना ना करे, इसलिए सब कुछ उसके माइंड में कैलकुलेशन करने के बाद वो बताती है। फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग वॉइस, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs out to cover it। ठीक है, वो बोलती है कि 400 फ्रांस अगर मिलेंगे मुझे तो शायद उससे मैं अच्छा ड्रेस खरीद पाऊंगी। He turned a little pale, pale means वो डीम हो जाता है, डार्क मीन्स निराश हो जाता है। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। ठीक है, उसने एक इतने ही पैसे गन खरीदने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए जाने वाला था। ठीक है, उसके लिए उसे गन की ज़रूरत थी, इसके लिए उसने संभाल के रखे हुए थे। पर अब वो पैसे अपनी वाइफ को ड्रेस लाने के लिए दे देता है। समटाइम इन आवर हाउस ऑल्सो इट हैपन्स कि मम्मी जो होती है उनको पता होता है कि पापा के पास कितने पैसे हैं और मैं कितने पैसे मांगूंगी तो पापा मना नहीं करेंगे, और उतने ही पैसे मांगे जाते हैं। सो ये सब कुछ लेडीज़ को पहले से ही पता होता है। सो मटिल्डा ऑल्सो डज द सेम, वो भी ऐसा ही करती है। ठीक है, उसको पता ही है कितने पैसे मांगने हैं। नेवरथलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। ठीक है, और अब वो पैसे देता है और बताता है कि एक अच्छा सा ड्रेस तुम खरीद लेना। Now the another two questions are, what fresh problem now disturb Madame Loisel, and second is how is the problem solved। ठीक है, अब उसको दूसरा कौन सा प्रॉब्लम होता है और वो कैसे सॉल्व होता है। Let's see that। Now the day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious। ठीक है, अब वो पार्टी, द बॉल मीन्स पार्टी, वो पार्टी में अब कुछ ही दिन बाकी थे। फिर से अब मैडम लॉइजल सैड, डिस्टर्ब और एंशियस दिखाई दे, वरी, एंशियस मीन्स वरीड दिखाई देती है। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू, You have acted strangely for 2 or 3 days। ठीक है, अब एक बार एक इवनिंग वो पूछ ही लेते हैं, उसका हस्बैंड उसे पूछ लेता है कि क्या प्रॉब्लम है, अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड मीन्स इरिटेट, नॉट टू हैव ज्वेल। ठीक है, बोलती है कि अब मेरे पास कुछ पहनने के लिए कुछ ज्वेल तो है नहीं। ठीक है, कुछ घरेना तो है नहीं, दागिना तो है नहीं, मैं क्या पहनूं। Nothing to adorn myself with। I shall have such a poverty-stricken look। I would perfect not to go to this party। ठीक है, और फिर से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है कि मेरे पास ऐसा कोई घरेना है नहीं जो मैं पहन के वहाँ पे जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब पार्टी में नहीं जाऊँगी। He replied, you can wear some natural flowers। In this season they look very chic। Chic means stylish। ठीक है, उसका हस्बैंड क्या बोलता है, तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वीमेन। ठीक है, वो बोलती है कि वो इतनी सारी रिच वीमेन के बीच में वो शेबी एयर में अच्छा नहीं लगेगा। देन एन हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। Go and find your friend Madame Forrester and ask her to lend you her jewels। She uttered a cry of joy। It is true, she said, I had not thought of that। ठीक है, अब उसका हस्बैंड उसे एक आइडिया देता है कि तुम क्यों जाकर अपने फ्रेंड से कुछ ज्वेल नहीं लेकर आती हो, और फिर वो खुश हो जाती है और सोच लेती है कि वो ऐसा ही करेगी। द नेक्स्ट डे
She took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forrester went to her closet. Closet means cupboard. Took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." ठीक है, अब क्या करते हैं? ठीक है, वो क्या करती हैं कि अब फिर से वो जो बॉक्स है, जो मैडम फॉरेस्टर के पास वो आई थी अपने ज्वेल लेने के लिए, तो वो क्या करती हैं, एक जो अपने दागिने, ठीक है, ज्वेल जो जिस बॉक्स में ले रखती होगी, वो उसकी फ्रेंड लेकर उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी पसंद हो वो इसमें से चूज कर लो, चूज माय डियर. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. ठीक है, वो अलग अलग सभी जितने भी पर्ल्स के दागिना है, ठीक है, ब्रेसलेट्स है, जो भी है वो सब देखती है. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. ठीक है, वो इतने सारे ज्वेल्स देखती है पर वो किसी को पसंद भी नहीं कर पाती है और किसी को छोड़ भी नहीं पाती है. Then she asked, "Have you nothing more?" "Why, yes, look yourself. I do not know what will please you." ठीक है, फिर वो अपनी उसकी फ्रेंड जो होती है मैडम फॉरेस्टर, वो बोलती है कि तुम खुद ही देख लो, तुम्हें जो पसंद आए तुम ले जाओ. Suddenly she discovered in a black satin box means silk box, a superb necklace of diamonds. Her hands trembled means vibrate as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic means extremely happy, वो बहुत ही खुश हो जाती है. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, ठीक है, बहुत ही hesitating voice में worried होकर वो पूछती है, "Could you lend me this, only this?" ठीक है, वो पूछती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ ये ज्वेल दे सकती हो. एंड उसकी फ्रेंड जो है वो बोलती है, "Why, yes, certainly." तुम बेशक वो ले सकती हो. तो इस तरह से जो मैडम लॉइजल है वो बॉल मीन्स द पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है. पहले अपने हस्बैंड से 400 फ्रांस लेकर एक नया ड्रेस खरीदती है, फिर अपने फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टर है उसके पास जाकर एक अच्छा सा नेकलेस है वो वहाँ से लेकर आती है, वो बॉल में, वो पार्टी में पहनने के लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड. She fell upon the neck of a friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. ठीक है, और उसको गले लगने के बाद वो अपने ट्रेजर, अपने खजाने के साथ, खजाना मीन्स उसको जो ज्वेल चाहिए था वो मिल गया, वो लेकर वहाँ से चली जाती है. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. ठीक है, और अब जो पार्टी का दिन है वो आ जाता है और पार्टी में मैडम लॉइजल जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है एंड वो बस स्माइलिंग, बहुत ही खुशी से उस पार्टी में एंजॉय करती है. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. ठीक है, और सभी मैन जो थे, सभी ठीक है मेल थे, वो उसके साथ आके इंट्रोडक्शन करवाते थे अपना, उसका नाम पूछते थे, सब लोग उसके साथ टाइम बिताना चाहते थे. शी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स ड्रंक. ठीक है, वो शराब भी पीती है. विथ प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. और ये सब कुछ चीज़ें उसे बहुत ही पसंद आती है. नाउ शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning. ठीक है, अब सुबह के 4 बज गए हैं और वो अब अपने घर को जाने के लिए रेडी होती है. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. ठीक है, अब उसका जो हस्बैंड था वो पार्टी में शायद बोर हो गया था, इसलिए वो एक सैलून में जाके दूसरे 3 लोग थे उनके साथ जाके सो गया है. He threw around her shoulders the modest wraps
they had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. Okay, modest means small and elegance means appearance. ठीक है, अब जो उसका हस्बैंड है वो घर से एक शॉल लेकर आया है, वो शॉल वो उसे पहनाता है क्योंकि बहुत ही ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए वो शॉल पहनाता है. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich force. ठीक है, अब वो अब क्या करती है, जल्दी से जल्दी वहाँ से चली जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिच लेडीज थे वो उसे देख ना ले, इसलिए. लॉयजल डिटेन्ड हर मीन्स होल्ड हर, उसे होल्ड करता है. वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. ठीक है, मैं एक कैब बुला कर लाता हूँ, तुम यहाँ पर रुको. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. पर वो क्या करती है, जल्दी से जल्दी वहाँ से चलने लगती है. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Hailing means greeting. The coachman whom they saw it at a distance. ठीक है, एक कोचमैन उनको विश करता है, ग्रीट करता है. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. ठीक है, अब बहुत कुछ चलने के बाद, बहुत आगे तक चलने के बाद उनको एक पुराना कैरेज मिलता है जो उनको अपने घर तक ले जाएगा. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. Wearily means tiredly. बहुत थके हारे वो अपने घर तक पहुंचते हैं. It was all over for her. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उस लेडी ने तो बहुत ही एंजॉय कर लिया, मटिल्डा ने, पर हस्बैंड को तो अच्छी तरह से पता है, मैडम मिस्टर लॉयजल को, कि उसको सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है. शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. ठीक है, वो अब ग्लास के सामने, अरीसे के सामने मीन्स आईने के सामने जाकर अपनी शॉल है वो निकालती है और अपने आप को, अपनी खूबसूरती को वो आखिरी बार देखना चाहती है. सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और उसी टाइम वो चिल्ला उठती है. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और देखती है कि जो नेकलेस उसने पहना था वो अब उसके गले में नहीं है. सो नाउ द ट्रेजेडी बिगिंस. ठीक है, अब ट्रेजेडी स्टार्ट होती है. जो नेकलेस वो अपनी फ्रेंड का पहन कर आई थी, ठीक है, मांग कर आई थी पहनने के लिए, और जिससे पहन के वो पार्टी में बहुत घूमी, बहुत एंजॉय किया, अब वो नेकलेस गुम हो गया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. अब मटिल्डा और उसका हस्बैंड उसको पाने के लिए, वो नेकलेस को वापस पाने के लिए क्या करते हैं, चलो देखते हैं आगे. रीड एंड फाइंड आउट. देयर आर द टू क्वेश्चंस. व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयजल डू नेक्स्ट, and the second is how do they replace the necklace. ठीक है, so these two questions answer we are going to see in the next paragraphs. Let's see. Loisel, already half undressed, asked what is the matter. She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forrester's necklace. ठीक है, वो बहुत ही हेजिटेट हो जाती है, बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है. He arose in dismay. What? How's that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. वो सभी जगह पर उसे ढूंढते हैं पर उनको वो मिल नहीं पाता है. कहीं पे वो शायद गिर गया या खो गया, तो वो बहुत जगह पर ढूंढते हैं पर उनको मिलता नहीं है. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" ठीक है, और पूछता है उसका हस्बैंड उसे कि तुम्हें याद है कि हम जब मिनिस्टर हाउस से निकले तो तुमने वो पहना था कि नहीं. Yes, I felt it as we came out. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall.
इट मस्ट बी इन द कैब। ठीक है, अब वो एज्यूम करते हैं, ठीक है, गेज करते हैं कि वो कहाँ पे गिरा हुआ हो सकता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर वो स्ट्रीट में गिरा होता, जब वो चल रहे थे तब वो गिरने की आवाज़ आती, तो फिर वो कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि शायद वो कैब में गिरा होगा। येस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? ठीक है, अब एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या तुमने वो कैब का नंबर नोट किया था? नो। दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. ठीक है, और वो जहाँ से वो चलते हुए आए थे उस जगह पर वापस जाता है, शायद उनको वो वहाँ से मिल जाए। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. ठीक है, अब उसमें उतनी हिम्मत नहीं बची थी। ठीक है, इतने बड़ी प्रॉब्लम अब आ चुकी है, तो अब उसको नींद ही नहीं आने वाली थी। Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. ठीक है, 7 बजे वो घर पे आता है, पर उससे वो नेकलेस मिला नहीं है। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. ठीक है, अब वो पहले पुलिस स्टेशन जाता है, कैब ऑफिसेस जाता है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है कि जिसको भी नेकलेस मिलेगा वापस करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब कुछ वो करने के बाद घर पे आता है। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment. Bewilderment means confusion. Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. पूरा दिन ढूंढने के बाद भी मिस्टर लॉइजल को कुछ मिलता नहीं है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब उसका हस्बैंड बोलता है उसे कि तुम्हारे फ्रेंड को मैसेज कर दो कि तुमसे जो नेकलेस का हुक होता है वो टूट गया है और उसको रिपेयर करवाने के लिए तुमने दिया है और रिपेयर हो जाते ही वो तुम्हें रिटर्न कर देंगे। ऐसा वो मैसेज करने के लिए बोलता है और उससे उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉइजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। ठीक है, लॉइजल उसकी वाइफ से 5 साल शायद बड़ा है, तो बोलता है कि अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि उसको हमें नया ज्वेल ला के देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। चैपलेट मीन्स नेकलेस, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। ठीक है, और वो नेकलेस बिल्कुल वैसा ही नेकलेस था जो उनसे खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस। और वो कितने का था? 40,000 फ्रांस का, जिसको 400 फ्रांस देने में भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम मीन्स कि वो हेजिटेट फील कर रहा था। अब उनको 40,000 फ्रांस चुकाने हैं नेकलेस के लिए। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। ठीक है, और 40,000 का है पर उनको 36,000 में वो मिल पाएगा। लॉइजल possessed 18,000 फ्रांस विच his father had left him। ठीक है, उसके पास कितने पैसे थे? 18,000 फ्रांस जो उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे। He borrowed the rest। ठीक है, और दूसरे पैसे वो दूसरी जगह से लाता है। He made ruinous promises। ruinous means disastrous, बहुत ही disastrous promises वो करता है। Took money from usurers। usurers means illegal bankers, बहुत ही बड़े ब्याज पर जो पैसे देते हैं उसे usurers बोलते हैं। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और सभी लोगों से वो पैसे उधार लाता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांस। अब 36,000 फ्रांस चुकाकर वो नया नेकलेस लेकर आता है। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone। frigid tone means lacking affection। ठीक है, प्यार ना हो वैसा। You should have returned them to me sooner, for I might have needed them। ठीक है, उसकी फ्रेंड क्या बोलती है कि ये तुम्हें जल्दी लौटाना चाहिए था
क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, ऐसा वो बताती है। लेट्स गो अहेड, व्हाट हैपन्स। अब वो नेकलेस वो पहचानती है नहीं पहचानती है वो भी देखना है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉइजल फियर्ड शी वुड। ठीक है, पर मैडम फॉरेस्टर वो ज्वेल बॉक्स खोल के देखती ही नहीं है। मैडम लॉइजल को उससे डर लग रहा था कि शायद वो खोल के देख ना ले। वॉट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। परसीव मीन्स अंडरस्टैंड एंड सब्सटीट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। वो सोचती है कि अगर उसे पता चल गया कि हमने ऐसे नेकलेस को रिप्लेस किया है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। वॉट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। वो ऐसा सोचते क्या वो ऐसा मानेगी कि हम लोग चोर हैं। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, अब वो 36,000 फ्रांस चुकाने के बाद अब उसको लाइफ क्या है उसके बारे में पता चलता है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। हीरोइकली मीन्स लाइक अ हीरो। ठीक है, ऐसे रिप्लेस करके नेकलेस को वापस कर देती है और हीरोइकली वो जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। ठीक है, अब जो घर में रहते थे उस घर को वो खाली कर देते हैं और एक छोटे से एटिक में जाके रहने लगते हैं। मेड जो उनके घर में आती थी, सर्वेंट जो आती थी, उसको भी वो अब निकाल देते हैं। सब कुछ काम वो अब मटिल्डा खुद करने लगती है। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। ऑडियस मीन्स ऑड और हेटेड, जिसको वो नफरत करती थी वैसे सब काम वो अब सीख जाती है। शी वॉश्ड द डिशेस, शी वॉश्ड द सॉइल लिन, द क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. ठीक है, अब वो जिसके घर में बस पानी तुरंत आ जाता था पर अब उसे नीचे तक दूर तक जाके पानी भर के आना पड़ता है और सीढ़ियों पे वो रुक रुक कर अपने घर तक पहुंचती है। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. Haggling means bargaining and sou means smallest value of French currency. ठीक है, अब वो सभी के पास खुद जाती है ग्रोसरी खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए। ठीक है, बच्चर के पास सभी जगह पर जाती है और उनके पास बार्गेनिंग करके एक छोटा पैसा बचाकर सामान खरीद कर घर लाती है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a पेज। ठीक है, अब हस्बैंड क्या करता है, इवनिंग्स में वो किसी मर्चेंट के वहाँ पे बुक्स को ऑर्डर में रखने के लिए जाता है और नाइट में एक पेज के 5 sou ऐसे उसे मिलते हैं कॉपी करने के लिए और ये सारे काम अब वो करने लगता है। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years और ऐसे उनको 10 साल बिताने पड़ता है। 10 साल तक ऐसा काम उनको करना पड़ता है, तब जाके वो 36,000 फ्रांस मीन्स जो भी उन्होंने डेप्ट, ठीक है, ब्याज से पैसे लिए थे वो चुका पाते हैं। दे हैड रिस्टोर्ड ऑल और 10 साल के बाद वो सब रिस्टोर कर पाते हैं। मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैडम लॉइजल 10 साल में बहुत ही बुढ़ी हो गई हो वैसी दिखती है। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर badly dressed, her skirts every means improper, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. Pails means bucket. ठीक है, बड़ी बड़ी बकेट्स भर के वो अपनी लॉबी को अच्छी तरह से, फ्लोर्स को अच्छी तरह से धोती है। But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window
and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. ठीक है, पर अभी भी जब कभी भी वो घर में अकेली होती है और उसका हस्बैंड जब जॉब पर गया है, उस टाइम पे वो उस पार्टी के बारे में सोचती है. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. और सोचती है कि अगर उसने वो नेकलेस नहीं घुमाया होता तो उनकी लाइफ कैसी होती. हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. ठीक है, और सोचती है कि लाइफ में कभी भी कैसे कैसे मोड़ आ सकते हैं. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. ठीक है, और सोचती है कि कैसे कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी किसी की लाइफ बना सकती है या बिगाड़ सकती है. वन संडे as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. ठीक है, एक संडे वो ऐसे ही रोड पर चल रही है, तब वो एक लेडी को देखती है उसके बच्चे के साथ. इट वॉज मैडम फॉरेस्टर. और वो कौन थी? मैडम फॉरेस्टर, उसकी फ्रेंड. स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. ठीक है, अभी भी वो यंग दिखती है, खूबसूरत दिखती है. मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड. ठीक है, मैडम लॉइजल वो देखकर बहुत ही जेलस फील करती है. शुड शी स्पीक टू हर? यस, सर्टेनली. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. व्हाई नॉट. और फिर वो सोचती है कि मुझे उसको सब कुछ बताना चाहिए कि क्या हुआ था. अब तो उसने वो उसका नेकलेस भी वापस कर दिया है, तो अब वो बता सकती है. सी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेन. और उसके पास वो पहुंचकर उसे ग्रीट करती है. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. ठीक है, अब तो ये जो मैडम मटिल्डा है वो अब पूरी चेंज हो गई है. ठीक है, अब वो बुढ़ी जैसे लगने लगी है, तो उसे देखकर जो फॉरेस्टर है वो पहचानती नहीं है. दैट्स वाई शी स्टैमर्ड. वो हकलाती है. बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. ठीक है, वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, शायद तुम्हारी कोई गलती हो रही है. नो, आई एम मटिल्डा लॉइजल. और बोलती है कि मैं तो मटिल्डा हूँ. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. ठीक है, वो बोलती है कि तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है. Let's see what happens ahead. अब देखते हैं जब वो बताती है कि मुझसे तुम्हारा नेकलेस खो गया था और हमने अब नया खरीद कर दिया और उसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है, तब उसकी फ्रेंड क्या रिएक्ट करती है. देखते हैं, चलो आगे क्या होता है. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. और अब वो बोलती है कि हमारी ये जो दिन हुए हैं, मेरी जो ये हालत हुई है, उसका रीज़न कौन है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है. बिकॉज ऑफ मी? हाउ इज़ दैट. ठीक है, फॉरेस्टर भी बोलती है मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. ठीक है, वो पूछती है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे पास से एक डायमंड नेकलेस लिया था, ठीक है, पहनने के लिए मिनिस्टर की पार्टी में. तो उसकी फ्रेंड भी बोलती है हाँ याद है. वेल आई लॉस्ट इट. और वो बताती है कि मैंने तो वो खो दिया था. हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. वो कैसे हो सकता है क्योंकि तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था. I returned another to you exactly like it and it has taken us 10 years to pay for it. ठीक है, वो बताती है कि मैंने वो नेकलेस नहीं पर उसके जैसा ही दिखने वाला दूसरा एक नेकलेस तुम्हें दिया था और उसको पे करने के लिए हमें 10 साल लग गए. You can understand that it was not easy for us who have nothing. ठीक है, और वो बताती है कि तुम समझ सकती हो कि मैं मिडिल क्लास से हूँ और हमारे लिए ऐसा कीमती नेकलेस खरीदना बहुत ही मुश्किल है. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. ठीक है, और बोलती है कि अब तो वो मैंने चुका दिया और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट. ठीक है, वो शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है. शी सेड यू से
दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। ठीक है, अब बोलती है कि क्या तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को बदलने के लिए। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। ठीक है, और खुश होते हुए वो बोलती है कि तुमने उसे नहीं पहचाना, कहाँ से पहचानोगे, वो तो बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा था। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। और फिर मैडम फॉरेस्टर है उसको ऐसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको बोलती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। क्या बोलती है, मटिल्डा मेरा जो नेकलेस था वो तो झूठा था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांस। उसकी कीमत 500 फ्रांस से ज़्यादा नहीं थी। सो हियर द लेसन इज एन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट how the life can be changed due to a single mistake, you can say, or due to the wish of others thing। दूसरे की चीज़ों की आशा रखने की वजह से क्या हो सकता है तुम समझ सकते हो। Now here there can be another result, okay, if the lady मटिल्डा ने अगर वो नेकलेस उसके पास से लाई ना होती तो शायद इसकी लाइफ कुछ और होती। सेकंड थिंग, अगर वो नेकलेस लाई तो भी उसको संभाल के रखना चाहिए था, संभाल के रखती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। थर्ड, अगर उसने नेकलेस खो दिया तो उसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उसको ये चीज़ बता देनी थी कि मेरे से ऐसा हुआ है, नेकलेस खो गया है। और अगर उसकी फ्रेंड उससे बोलती कि तुम्हें मुझे नया नेकलेस खरीद कर देना पड़ेगा, तब अगर वो खरीद कर देखती तो भी शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। सो वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम मटिल्डा's लाइफ। हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे से भी ये गलती हो सकती है, होती है, तो हमें भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कभी भी हमसे किसी की चीज़ खो जाए तो हमें उसे रिप्लेस करके देने के बजाय पहले उसके सामने कन्फेस करना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है, गलती माननी चाहिए। शायद सामने वाला उस गलती को माफ़ कर दे और आपको वो चीज़ लौटाने की ज़रूरत ना भी पड़े। ठीक है, तो शायद आपकी लाइफ में या हमारी लाइफ में भी ऐसा डिज़ास्टर ना हो। सो वी ऑल विल टेक केयर अबाउट दिस एंड वी ऑल विल learn these things from Matilda's life, and we will never do this kind of things in our life. I hope you enjoyed this lesson. Now let's see the question answers. You can see this glossary which already I have explained in the chapter. Now here you can see, think about it, 4 questions are there, and in talk about it, 3 questions are there which you have to write in your notebook, as well as all read and find out questions also you have to write in your notebook. So here I end this lesson. Now if you have any difficulty regarding this lesson, you can contact me on my number. My number is 9033 255 323 or 83 200 60822. Thank you. Have a nice day. Bye bye.